Hello students, in last lecture we had studied about the monohybrid experiment. Okay, today we will start this experiment by the Punnett square method. ओके, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट को ही समझना है वापस, लेकिन कौन सी मेथड के थ्रू? बाय द प्यूनेट स्क्वायर मेथड. सो बाय दिस प्यूनेट स्क्वायर मेथड the formation of gametes then the formation of zygotes in F1 and F2 generation is really understood. Okay, here the production of gametes means how gametes were produced, then what is the possibilities of the zygote in F1 generation and F2 generation is easily understood by this Punnett square method. Why it's known as Punnett square method? Because this method was developed by the British scientist or British geneticist Reginald C. Punnett. Clear? The name was given Punnett square. Why? Because this method was given by the British geneticist, British scientist Reginald C. Punnett. मतलब कि ये जो मेथड है प्यूनेट स्क्वायर मेथड, वो किसने दी थी? द ब्रिटिश साइंटिस्ट रेजिनाल्ड सी प्यूनेट ने दी थी. ओके, और उसकी वजह से इस जो मेथड है उसका नेम क्या है? प्यूनेट स्क्वायर मेथड. एक्चुअली ये मेथड में उसने स्क्वायर का यूज किया हुआ है, मतलब जो भी पॉसिबल जाइगोट फॉर्मेशन होता है ना, वो उसने स्क्वायर में रखा हुआ है. इसकी वजह से उसको हम प्यूनेट स्क्वायर मेथड बोलते हैं. Okay, the why it's known as Punnett square method? Because this method was given by the British geneticist Reginald C. Punnett. Clear? Okay. Now, what is this? In this method, what happened? So let's start this method. What is the purpose of this method? ये जो साइंटिस्ट है उसने ये मेथड क्यों फाइंड आउट की? तो by using this method we have to calculate all the possible probabilities of genotypes. मतलब कि ये मेथड के थ्रू हम जितने भी पॉसिबल और जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है जीनोटाइप की, वो फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब कि कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, जितने भी प्रोबेबल जीनोटाइप का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, व्हाट इज जीनोटाइप एंड व्हाट इज फिनोटाइप. जीनोटाइप मतलब को जो जब हम जीन अकॉर्डिंग टू जीन रेशियो फाइंड आउट करते हैं उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं. मतलब कि कैपिटल टी इट्स नोन एज जीनोटाइप. लेकिन जो जीन प्रेजेंट है उसके हिसाब से जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं, टॉल है या फिर ड्वार्फ है, उसको हम फिनोटाइपिक कैरेक्टर बोलते हैं. क्लियर? तो हियर व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मेथड और व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्यूनेट स्क्वायर मेथड? तो बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज ऑफ जीनोटाइप्स. मतलब कितनी प्रोबेबिलिटीज है, कितने टाइप के जीनोटाइप्स फॉर्म हो सकते हैं, वो सारे हम इस मेथड के थ्रू काउंट कर सकते हैं.
Clear? So by this diagrammatic representation we can easily calculate all the possible probabilities of the genotypes. Clear? Okay, let's repeat. First, the monohybrid experiment was easily understood by the Punnett square method. Why it's known as Punnett square method? So this method was given by the British geneticist Reginald C. Punnett. So it's known as Punnett square method. And in this method, the possible probabilities and the possible formation of genotype of zygote generally written in square. So it's known as Punnett square method. Clear? Okay. Now, by this method, generally we can easily find out the probabilities of genotypes of zygotes. Clear? मतलब zygotes जो फॉर्म होगा उसमें कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स होंगे वो हम इजीली इस मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? लेट्स स्टार्ट दिस मेथड. फर्स्ट द क्रॉसिंग सेम एज एक्चुअली ये जो मेथड है पुनेट स्क्वायर ये जस्ट मेथड है मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट को एक रिप्रेजेंट करने का डायग्रामेटिक मेथड है. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था कि पेरेंट में कैपिटल टी उसका क्रॉसिंग वो करवाते हैं हम स्मॉल टी से, वो सब कुछ हमने लास्ट में मोनोहाइब्रिड में पढ़ ही लिया है. ये वही का वही एक्सपेरिमेंट है लेकिन किस मेथड के थ्रू हम समझ रहे हैं? पुनेट स्क्वायर मेथड के थ्रू. क्लियर? ओके, तो फर्स्ट वी टेक सेम two parent plants, one is tall and another is dwarf, having genotype capital T and small t. So first of all we take as a parent tall plant and dwarf plant. Tall plant having genotype capital T and dwarf plant having genotype small t. Clear? Okay. Here from this method, by this method हम क्या करेंगे कि जितने भी possible genes है, gametes है, तो ये जो gametes है हम दोनों साइड मतलब कि टॉप पे लिखेंगे एंड लेफ्ट साइड. जैसे कि देखो here the possible gene gametes कौन कौन से हो सकते हैं possible capital T and capital T. यहाँ टू टाइप्स के possible gametes है capital T. सेम वे यहाँ भी कौन सी पॉसिबिलिटी है? स्मॉल t. तो जब भी हम ये मेथड को यूज कर रहे हैं तब जितने भी पॉसिबल गैमेट्स है उसको हम कहाँ लिखेंगे? टॉप पे. कहाँ लिखेंगे? टॉप. क्लियर? तो बाय यूजिंग दिस पुनेट स्क्वायर मेथड जनरली क्या करेंगे हम? तो हियर मीन्स जो पॉसिबल गैमेट्स है विच वर रिटन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉलम एंड टू साइड्स पे लिखेंगे, टॉप पे लिखेंगे एंड लेफ्ट कॉलम में लिखेंगे. क्लियर? ओके. देन आफ्टर व्हाट हैपन? हियर there is a formation of square and the possible genotypes are capital T with small t. Same way capital T fused with small t. Here capital T fused with small t and capital T fused with small t. So in F1 progeny, all the plants are tall, having genotype capital T. आप देख सकते हो कि स्क्वायर में हमें सारे एक ही टाइप के जीनोटाइप्स मिले हैं. कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t. तो हियर
all the possibilities have same genotypes, capital D, small t, and the phenotypic character is tall and genotype is capital T, small t. Clear? Okay. Then after, the progeny of F1 are self-pollinated. Clear? तो ये जो प्रोजेनी मिली हमें F1 में कि जिसका जीनोटाइप कैपिटल T है, हम उसका सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं. सेल्फ पोलिनेशन मतलब कैपिटल टी उसको उसके जैसे ही जीनोटाइप के साथ क्रॉसिंग करवाना, उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन. तो यहाँ हम उसका सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं. ये मेल है, द सिंबल इज दिस, एंड फीमेल द सिंबल इज क्लियर. तो here the crossing or the self pollination between the F1 progeny for getting F2 progeny. Clear? Now what happened? Here the self pollination, ध्यान से सुनना ये. Here in male having two types of genotypes or two types of gametes, not genotypes, having two types of gametes. One is capital T and another is small t. Same way in female having two types of gametes or having two types of egg. One is capital T, another is small t. Clear? तो जब हम मेल एंड फीमेल का फ्यूजन करेंगे तो क्या होगा? तो ध्यान से सुनो. द पोलन ग्रेन having gametes capital T have 50% chance to fuse with egg having capital T gamete and 50% chance having small t gametes. मतलब वो ये बता रहे हैं कि मेल है उसमें जो ये कैपिटल टी वाला जो है पोलन ग्रेन, उसका फ्यूजन फीमेल के साथ होगा. तो उस मेल जो है उसके पास 2 ऑप्शंस है, मतलब 2 चांस है. 50% चांस ऐसा है कि वो कैपिटल टी वाले एग के साथ फ्यूज हो सकता है एंड 50% चांसेस है कि वो स्मॉल टी वाले एग के साथ भी फ्यूज कर सकता है. क्लियर? सेम वे द पोलन ग्रेन हैविंग gametes small t have 50% chance to fuse with egg having capital T gametes and 50% chance to fuse with small t gametes. मतलब कि स्मॉल टी जो है मेल, उसके पास भी 50% चांस होता है कि वो कैपिटल टी कंटेन करने वाले एग के साथ फ्यूज करे या फिर स्मॉल टी वाले एग के साथ फ्यूज करे. क्लियर? तो हियर देयर इज 2 ऑप्शन फॉर बोथ. मतलब कि मेल के पास टू टाइप्स के गैमेट्स है, एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है. तो मेल का जब फीमेल के साथ फ्यूजन होगा तो फीमेल के पास भी 2 टाइप के गैमेट्स है, एक कैपिटल टी है एंड एक स्मॉल टी है. क्लियर? तो जब मेल का कैपिटल टी कंटेनिंग पोलन ग्रेन है, तो जब वो फीमेल के पास जाएगा तो उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, मतलब ऑप्शन नहीं 2 चांस होंगे कि आइदर वो कैपिटल टी वाले एग के साथ फ्यूज हो सकता है और 50% पॉसिबिलिटी है कि वो स्मॉल टी वाले एग के साथ फ्यूज हो सकता है. सेम वे अगर जो मेल है उसमें स्मॉल टी है पोलन ग्रेन में, तो उसके पास भी 50% पॉसिबिलिटीज है कि आइदर वो कैपिटल टी वाले एग के साथ फ्यूज कर सकता है या फिर स्मॉल टी वाले एग के साथ फ्यूज कर सकता है. क्लियर? सो हियर फॉर F2 प्रोजेनी हम क्या लिखेंगे? पहले यहाँ हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं किसके बीच में? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. सेम वे इसके जैसा ही हमें टॉप पे लिखना है 2 साइड्स. लेफ्ट कॉलम में देखो तो हम ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ कैपिटल टी है एंड स्मॉल टी. यहाँ 2 टाइप्स के गैमेट्स है. तो सेम वे यहाँ फीमेल के भी 2 टाइप्स के गैमेट है, कैपिटल टी स्मॉल टी. जैसे मैंने बताया
here is the F2 progeny. Same way, capital T having two chance, मतलब कि the pollen grain having capital T have to 50% chances with bind to the capital T containing X. तो capital T 50% chance with small t containing X means capital T small t. Same way, the pollen grains having gametes small t also have 50% chances to fuse with the capital T containing X means this one capital T small t. Same way, the pollen grain having small t gametes having another 50% chance with this small t containing X. So this one. Clear? So here is the possibilities of zygotes having different genotypes. Clear? इस स्क्वायर में हमको सारी ये पॉसिबिलिटीज मिली कि अब जो न्यू zygotes फॉर्म हो रहा है, मतलब जितने भी न्यू zygotes फॉर्म हुए मेल एंड फीमेल के फ्यूजन के थ्रू, तो वो zygotes में कौन से टाइप के जीनोटाइप्स मिल सकते हैं, ये उसकी सारी पॉसिबिलिटीज है कि जो हम ये प्यूनेट स्क्वायर मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? तो क्या किया हमने सबसे पहले, तो फर्स्ट वी टेक और क्रॉस बिटवीन द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट. द टॉल प्लांट हैविंग द जीनोटाइप कैपिटल T and the dwarf plant having the genotype small t. Here the this tall plants and the dwarf plant having capital T types of gametes and small t types of gametes respectively. Then these gametes are generally written on the top sides, left column on both sides, and the possible or the probabilities of the genotypes of zygotes are written in the box or in the square. Clear? मतलब स्क्वायर में जो बॉक्स है उसके अंदर, मतलब द बॉक्स बिलो इन स्क्वायर, द पॉसिबिलिटीज आर कैपिटल T small t, कैपिटल T small t, कैपिटल T small t and capital T small t. So here in F1 progeny all the zygote having जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t एंड फिनोटाइप टॉल, मतलब कि देखने में वो सारे टॉल है एंड सबका जीनोटाइप एक ही जैसा है कैपिटल T स्मॉल t. क्लियर? नाउ फॉर गेटिंग F2 progeny, the F1 progeny are self pollinated and in self pollination the male having genotype capital T small t cross with the female having genotype capital T small t. The symbol for male this one and the female this one. Now in this crossing what happened, the pollen grain containing capital T gametes have 50% chance to fuse with capital T containing egg and 50% chance to fuse with small t containing X. Same way, the pollen grain contain small t gamete having 50% chance to fuse with capital T containing egg or small t containing X. Clear? And here is the result. In this square we have get the zygote containing this type of probability of genotype. मतलब कि F2 में जो zygote फॉर्म हुए उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है जीनोटाइप की, वो हमें इस स्क्वायर में मिल गई. क्लियर? तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ F2 में कैपिटल T small t, capital T small t and small t small t, ये पॉसिबल zygotes मिले. क्लियर? अब अकॉर्डिंग ऑन दिस रिजल्ट वी हैव टू फाइंड आउट जीनोटाइपिक रेशियो as well as phenotypic ratio. Clear? Okay.
तो इन F2 जनरेशन कैपिटल टी पहले हम जीनोटाइपिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं। In previous lecture we have already studied about this, how to find out the genotypic ratio. We have to calculate the same numbers of genes. Clear? Okay. So first capital T containing only 1 means 1/4. 4 में से 1 कितने, 4 में से 1 है कैपिटल T containing. Okay. कैपिटल T स्मॉल t वाले कितने हैं 1 and 2, तो 2/4, 2/4 मीन्स सेम वे 1/2 लिख सकते हैं ना, तो 1/2 इज कैपिटल T स्मॉल t एंड सेम वे स्मॉल t 4 में से 1 कितने हैं 1/4 स्मॉल t, तो जीनोटाइपिक रेशियो इज कैपिटल T ओके, यहाँ कैपिटल T 1/4, कैपिटल T स्मॉल t 1/2 एंड स्मॉल t 1/4. क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 कैपिटल T, 2 कैपिटल T स्मॉल t एंड 1 small t, 1:2:1, both are same. Clear? Here is the genotypic ratio 1:2:1, और जैसे लिख सकते हैं ऐसे भी वो सेम ही हो गया 1/4 then 2/4 को हमने 1/2 लिखा and 1/4. Now what is phenotypic ratio? How to calculate phenotypic ratio? We observe the external characters. Here capital T, the plant is tall. Capital T small t, the plant is tall. Capital T small t, also the plant is tall. And small t, the plant is dwarf. So how many plants are tall? 1, 2, 3. Then phenotypic ratio 1, 2 and 3. 4 में से 3 plants tall है and 1 dwarf, 1/4. So the phenotypic ratio is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1. Clear? Okay. So by this method we calculate the possible probabilities of genotypes of zygote. जो भी zygote फॉर्म होंगे उसमें कितने टाइप के पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं कि प्लांट कैपिटल टी जीनोटाइप वाला भी हो सकता है, प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाला भी हो सकता है, स्मॉल टी वाला भी हो सकता है. तो ये जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप्स है वो हम ये प्यूनेट स्क्वायर मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? ओके. देखो अनदर पॉइंट कि in the crossing between parent plant, tall and dwarf plant, okay, then we get F1 progeny having genotype capital T small t. और हमने ये भी बोला जो मैंने वैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है लेकिन फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि हमने F1 प्रोजेनी में हमें सारे प्लांट कैसे मिले कैपिटल T स्मॉल t वाले. दैट मीन्स कैपिटल T है एंड स्मॉल t है. तो कैपिटल T एंड स्मॉल t में से रिप्रेजेंट कौन हुआ कैपिटल T. मतलब कैपिटल T कौन है डोमिनेंट है. किसके ऊपर डोमिनेंट है स्मॉल t के ऊपर. क्लियर? तो वो डोमिनेंट होने की वजह से ही ये जो प्लांट है वो हमें कैसे मिले टॉल. क्लियर? सेम वे इन F2 प्रोजेनी हियर 3/4 आर टॉल. मतलब कि 3 प्लांट कैसे है टॉल है एंड एक प्लांट ड्वार्फ. अब समझो
कि अगर आपके पास 3 टॉल प्लांट है तो क्या आप उसको विजुअली देख के बता सकते हैं कि इसमें कैपिटल टी वाला कौन सा है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कौन सा है? नहीं बता सकते। विजुअली आपको थोड़ी पता चलेगा कि ओके ये तीनों प्लांट है, सेम साइज के है, टॉल है, पेरेंट जैसे ही है, लेकिन ये तीनों प्लांट को आप देख के ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ओके इसमें कैपिटल टी ही होगा और इसमें कैपिटल टी ही स्मॉल टी ही होगा? हम नहीं जज कर सकते हैं। ओके क्लियर? वो कैसे जज करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टेस्ट क्रॉस में। यहाँ हम एक्चुअली मतलब कि इसके थ्रू हमें जस्ट यही सीखना है कि जो F2 प्रोजेनी है, तो F2 प्रोजेनी में हमें जो 3/4 प्लांट मिले टॉल, उसमें कैपिटल टी डोमिनेंट है, वो प्रूव होता है। क्योंकि वो डोमिनेंट है उसकी वजह से ही हमें 3 प्लांट टॉल मिल रहे हैं। क्यों? देखो इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है, मतलब उसके पास दोनों गैमेट्स है वो टॉल वाले ही है, तो ऑब्वियसली वो तो टॉल मिलने ही वाला है। लेकिन ये जो दो है उसमें एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है। Clear? One is capital T, another is small t. Then how to judge? तो capital T represent his character over the small t. Clear? अगर इसका जो composition है वो capital T small t है, फिर भी the phenotypic character is tall. What is the meaning of this? The meaning is that capital T represent itself but small t does not represent itself in the presence of capital T. Means capital T dominant over the small t. Clear? जो capital T है वो small t के ऊपर dominant है और obviously जो dominant है वही अपना character represent कर सकता है। So in F2 progeny, because the dominant gene is capital T, so the ratio of tall and dwarf, which ratio? Phenotypic ratio 3:1. 3 tall है and 1 dwarf है। 3 tall क्यों मिले? Because of the dominant gene capital T. Clear? Okay. So this is about the Punnett square method. अगर आपको पूछा जाता है कि what is the purpose of this Punnett square method, the answer is to find out, or this type of diagrammatical representation is used to find out the probability of genotypes of the zygote which is formed by the fusion of parents. पेरेंट्स के फ्यूजन के थ्रू जितने भी जाइगोट्स फॉर्म होते हैं उसमें कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड होती है उसको प्यूनेट स्क्वायर मेथड कहा जाता है। क्लियर? ओके। लास्ट में एक टॉपिक है, हमने ये सब कुछ फाइंड आउट किया। अब जीनोटाइपिक रेशियो जो मिला है हमें, by getting this genotype ratio 1:2:1 or 1/4:1/2:1/4, देखो here is the genotypic ratio 1/4 capital T, ध्यान से देखना, here is to 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसे है वो तो पता चला ना, मैं रिपीट कर रही हूँ, चलो एक बार फिर से 1/4 स्मॉल टी ये किसका सिंपल फॉर्म लिखा है हमने? देखो हमें F2 में क्या मिला था? कैपिटल टी एक था, ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी दो मिले थे एंड स्मॉल टी मिले थे हमें 1। वैसे जनरली हमने क्या रेशियो लिया है? 1:2:1। ये सेम वही हुआ है, लेकिन कैसे लिखा? देखो टोटल कितने हैं? 4
4 में से कैपिटल टी वाले कितने 1, तो 4 में से 1 कैपिटल टी ओके। 4 में से 1 एंड 2 2/4 कौन से कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 2/4 तो 2 2 जा 4, तो सेम वे 1/2 हो गया ना, तो 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड सेम वे 4 में से 1 कौन सा है स्मॉल टी क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो है 1/4 कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी and 1/4 small t. Okay. Now, this form represent the binomial expansion. ये जो है ये जो फॉर्म है 1/4 is to 1/2 is to 1/4 वो जनरली क्या डिनोट कर रहा है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ax प्लस by होल स्क्वायर, ये जो फॉर्म है ना वो किसका एक्सपांशन फॉर्म है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन ax प्लस by के होल स्क्वायर जैसा है। देखो कैसे मैं दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं ना ax प्लस by होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस by क्लियर। स्क्वायर है दैट मीन्स के इसको हमने 2 टाइम लिखा, वैसे दूसरा भी है ax प्लस by होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं लिखते हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सेम वे, तो उसको हमने 2 टाइम रिपीट करके लिखा है ax प्लस by होल स्क्वायर ax प्लस by क्लियर। तो ये जो टर्म है वो कैसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाला टर्म है। देखो यहां क्या है 1/4 कैपिटल टी अगर हमें लिखना है कि ये जो पूरा है वो किसका स्क्वायर है, अगर हमें लिखना है कि ये जो है वो किसका स्क्वायर है, तो देखो 1/4 किसका स्क्वायर हो सकता है 1/2 का हो सकता है। ये जो है वो किसका स्क्वायर है पूरा 1/2 का, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, और यहाँ 2 कैपिटल टी है मतलब टी, तो 1/2 स्क्वायर आंसर क्या आएगा 1/2 स्क्वायर का 1/2 स्क्वायर 1/4 एंड टी स्क्वायर कैपिटल टी हो गया। इसको हम कंसीडर कर रहे हैं ax, ये a और t वाला जो है वो x क्लियर। यहाँ सेम 1/4 स्मॉल टी 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 एंड स्मॉल टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो इसको हम क्या ले सकते हैं by क्लियर। 1/2 का स्क्वायर 1/4 स्मॉल टी स्क्वायर दैट इज t क्लियर। हियर 1/2 का स्क्वायर 1/4 एंड टी स्क्वायर दैट इज क्लियर। ओके, तो ये हुआ ax, ये हुआ by क्लियर। अब हम देखते हैं ax प्लस by होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस by सेम वे ax प्लस by। ओके, ax की जगह पे क्या लिखना है 1/2 कैपिटल टी प्लस by की जगह पे 1/2 स्मॉल टी उसका होल स्क्वायर क्लियर। क्या लिखेंगे हम ax प्लस by, ax मतलब 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी क्लियर। अगेन ax प्लस by, ax की जगह पे लिखेंगे 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी। ओके, नाउ
cross multiply. 1 by 2 multiply by this 1 by 2. So 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4 capital T plus 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4 capital T small t plus 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4 capital T small t plus 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4 small t. हो गया? यहाँ मैं लिख रही हूँ फरी वही 1 by 4 capital T, 1 by 2 capital T small t, 1 by 4 capital T small t plus 1 by 4 small t. क्लियर? ओके, सिंप्लीफाई करते हैं उसको. सेम एज यूजुअल 1 by 4 कैपिटल T. देखो ये दो जो है वो कौन से है? कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, जिसका डिनोमिनेटर सेम है 4. 1 plus 1 2. 2 by 4 उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? 1 by 2. ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 by 2 कैपिटल T स्मॉल t प्लस 1 by 4 स्मॉल t स्मॉल t. Same like this. Clear? So this genotypic ratio generally represented as binomial expression ax plus by whole square. मतलब कि जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो एक्चुअली क्या है? तो कि वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को ही रिप्रेजेंट करता है. मतलब कि ये जो पूरा है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का ही एक्सपांडेड फॉर्म है. मिला ना हमें ये एक्सपांडेड फॉर्म? तो दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ax plus by whole square. Clear? तो what is ax? 1 by 2 capital T. What is by? 1 by 2 small t. And let's expand it. ax plus by whole square is equal to ax plus by in place of ax 1 by 2 capital T plus in place of by 1 by 2 small t whole square is equal to ax plus by, and that simplify we get 1 by 4 capital T, 1 by 2 capital T small t and 1 by 4 small t. Clear? So genotypic ratio is generally expressed in form of binomial expression. Clear? Okay. Then Punnett square method. What is the purpose of this method? To calculate the probability of जीनोटाइप्स इन द फॉर्मेटिंग जाइगोट्स. मतलब जितने भी जाइगोट्स फॉर्म हुए उसमें पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने हैं वो फाइंड आउट करने की जो मेथड है दैट इज प्यूनेट स्क्वायर मेथड. एंड व्हाई इट्स नोन एज प्यूनेट स्क्वायर? बिकॉज इट वाज फाउंड आउट बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट रेजिनाल्ड सी प्यूनेट. एंड द पॉसिबल जो भी पॉसिबल है जीनोटाइप्स वो उसने एक बॉक्स में स्क्वायर में लिखा था. उसकी वजह से इट्स नोन एज द प्यूनेट स्क्वायर मेथड. एंड फ्रॉम दिस मेथड वी गेटिंग F1 progeny, F2 progeny. Okay, in F1 progeny all the are tall plants, and this tall character is due to the dominant gene capital T. Same way in F2 generation 3 were tall, 1 is dwarf. The 3 tall plants also due to the dominant gene capital T. So we say that capital T is dominant over the small t. Clear? Okay. Now the genotypic ratio is 1:2:1 and the phenotypic ratio is 3:1. The genotypic ratio is represented or expressed in form of binomial expression.
and here it is the expanded form of this binomial expression. Clear? Okay. यहाँ तक ध्यान से देखना, लर्न करना, 2 times लिखना. फिर भी कोई क्वेरी है अगर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे द लॉ which was given on the basis of monohybrid experiment. मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बेस पे मेंडल ने 2 लॉज दिए थे, वो लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.